Maharashtra BMC polls is currently underway for elections in 29 municipal corporation. And the spotlight is now firmly on Mumbai, where the BJP-led Mahayuti is locked in a keen contest with United Thackeray cousins Raj and Uddhav for control of the cash-rich BMC. The contest is being keenly watched as BJP-led Mahayuti locks horns with Thackeray's cousins, Uddhav and Raj, who have reunited after nearly 2 decades in a bid to consolidate the Marathi vote. The polls widely being seen as a crucial test of strength ahead of the next phase of political battles in the state. And polling is being held after 6 long years following legal and administrative delays after the term of the urban local bodies ended between 2020 and 2023. Voting for all important polls began this morning at 7 o'clock, which are likely to now conclude by 5:30 in the evening. The results will be declared by 16th of January. And since morning today, several celebrities, political stalwarts, including the likes of Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, RSS Sarsanchalak Mohan Bhagwat, Union Ministers Nitin Gadkari, Piyush Goyal were seen casting their vote. And Mumbai is also the land of celebrities, and so Bollywood stars like Akshay Kumar, Sunil Shetty, Hema Malini, along with legendary cricketer and Mumbai's favourite son, Sachin Tendulkar, also cast their votes and urged citizens in Mumbai and Maharashtra to exercise their democratic right. According to the State Election Commission, 7.12% voter turnout was recorded in the BMC election as early as 9:30. We'll get you the updated numbers very, very shortly. Across Maharashtra, elections are underway, remember, for 2,869 seats across 893 wards. A massive 3.5 crore voters will decide the fate of 15,931 candidates. Mumbai alone has nearly 1,700 candidates in fray for 227 seats, while Pune has over 1,160 contestants. My colleague Jaiprakash is joining us live from Mumbai. Jaiprakash is with, in fact, celebrities there in Mumbai. Over to you, Jaiprakash. देखिए, हमारे साथ में शर्लिन चोपड़ा है, बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं और वोट डालकर ये आई हैं जानकी देवी जो यहाँ पर जुहू में, और जुहू के जमुनाबाई स्कूल में इन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। हम इनसे बात करते हैं। शर्लिन, आपने अपना वोट कास्ट किया है, सबसे पहले आपको बधाई, क्योंकि आपने लोकतंत्र के अधिकार का उपयोग किया। आप बताएं, आपने क्या देखा, पार्टी या उम्मीदवार? मेरे लिए ज़मीनी मुद्दे बहुत ज़्यादा for me what truly matters is the real problem of the society. And please tell. Yeah, so religion, language, caste. While Jaiprakash is speaking to Sharlin Chopra there, let's also quickly listen in to other reactions that have come in on Mumbai's mega polls. हमारे लोकतंत्र की एक ऐसी इकाई है जिसको हम लोकतंत्र की मूलगामी आधारशिला कह सकते हैं। इसलिए इसमें मतदान करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिनका भारत के लोकतंत्र पर विश्वास है, ऐसे सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप मतदान के लिए जाइए। मैं ऐसा मानता हूं कि मतदान ये केवल आपका अधिकार नहीं है, तो ये आपका कर्तव्य भी है। लोकतंत्र में अगर हम अच्छा शासन चाहते हैं तो हम मतदान के लिए जाएं। इसलिए मैंने भी मतदान किया है। मैं सभी को अपील करता हूं, आप भी मतदान कीजिए, बड़े से बड़ी संख्या में मतदान कीजिए। कोई भी अपने घर पे नहीं रुके, सभी लोग लोकतंत्र के इस उत्सव में सम्मिलित हो, ऐसा मैं सबसे निवेदन करता हूं। हमारे लोकतंत्र मतदान में काफी उत्साह है लोगों में, और काफी लोग मतदान के लिए उतरे हुए हैं और देख रहे हैं भारी भीड़ पड़ी है यहाँ पर। और सभी लोगों ने मतदान करना चाहिए अपने शहर के विकास के लिए
और अपने परिवार के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए सभी लोगों ने अपना मतदान का हक जो है अदा करना चाहिए। इसलिए मतदाता सब लोग यहाँ आकर मतदान करें। सभी जगह पर मतदाताओं ने अपना मतदान का लोकशाही में जो अधिकार होता है उसे अधिकार को निभाना चाहिए, ऐसी मेरी विनती है, मेरा आह्वान है उनको। और सभी जगह पर भारी उत्साह है। मुंबई में भी 25% से ज़्यादा वोटिंग हुई है 1 घंटे पहले, तो इसका मतलब साफ है कि मुंबई में भी एक बदलाव लोग चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, विकास चाहते हैं। सर, परसेंटेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किस प्रकार से देखते हैं परसेंटेज बढ़ेगा तो कितना फायदा जो है आपको हो सकता है, मुंबई मनपा हो या राज्य की 19 मनपाएं हो? सब जगह पर महाराष्ट्र में डेवलपमेंट के लिए वोट देंगे। लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, टीका टिप्पणी आरोप प्रत्यारोप नहीं चाहते। लोग पूरी तरह विकास चाहते हैं और हमारा एजेंडा चुनावी हम विकास के एजेंडे पे लड़े हुए हैं। विपक्ष हार के डर से जो है शाही हो, अभी पहले ईवीएम कहा जाता था, अभी शाही के ऊपर बात कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? अभी मैंने चुनाव आयोग से भी बात की, वो बोले 2012 से यही इनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो विपक्ष को पता है कि वो पराजित हो सकते हैं, इसलिए पहले से ये जो कारण है वो ढूंढ रहे हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि चुनाव में पूरी ट्रांसपेरेंसी हो, चुनाव में कोई भी बोगस मतदान ना हो और चुनाव हर एक को अपना जो चुनाव का अधिकार है, मत देने का अधिकार है, वो अदा करने का पूरा हक है और वो इसके लिए चुनाव आयोग ने उसकी व्यवस्था और नियोजन करना चाहिए। सर, मुंबई में महापौर जो है कैसे देखते हैं, महापौर कैसे होगा? इधर आदमी को हे बघून घ्या। सर, मुंबई का महापौर की सरकारी कैसे बैठा जाएगा? चलो कल पहले रिजल्ट आने दो। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि ये मौका ऐसा है जहाँ पे आपको अपना ओपिनियन आप मतदान के जरिए आप एक्सप्रेस कर सकते हो और जो आप चाहते हो उसमें एक एक बूंद, हम जैसे कहते हैं कि एक एक बूंद इम्पोर्टेंट होता है। तो ये अगर रिजल्ट जो आप चाहते हो वो अगर रियलाइज करना है तो हर एक इंसान को आके मतदान करना चाहिए। मध्यरात्री किंवा दुसऱ्या दिवशी पहाटेपर्यंत मतमोजणीचे निकाल जाहीर व्हायचे। जोपर्यंत मतदान होत नाही तोपर्यंत मतपेट्या उघडल्या जात नाहीत। मग त्याच्यामध्ये पोस्टल सुद्धा आल्या। आता या याच्यामध्ये निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रभाग क्रमांक 200 ते 206 यांचे 8/1/2024 पत्र मतमोजणीच्या दिवशी मतमोजणी सुरळीत पार पाडण्याकरता उक्त दिनांकास झालेले टपाली मतदान हे मतदानाचा लिफाफा तपासून वगैरे खूप मोठे आहे। त्यांनी आज दिनांक 15/1/2024 रोजी दुपारी 3 वाजता सदर टपाली मतपत्रिकेच्या पेट्या स्ट्रॉंग रूम मधून बाहेर काढण्यात येणार आहेत। तरी त्याकरता आपण किंवा आपल्या टपाली मतपत्रिकेकरिता नेमणूक केलेला प्रतिनिधी यांना वरील नमूद वेळेत उपस्थित राहण्याकरता आपले स्तरावरून सूचना देण्यात याव्या। हे काय चाललेलं आहे, म्हणजे कोणत्या प्रकार किंवा कसली लोकशाही आहे? मला आणखीन एक मेसेज असा आला की संविधान म्हणते मतदान करा आणि निवडणूक आयोग म्हणते करूनच दाखवा। तर निवडणूक आयोग किंवा आयुक्त जे मुख्यमंत्री असं म्हणाले तसं तुमच्या माध्यमातून कळलं मला की रडीचा डाव खेळतायत, पण मग मुख्यमंत्री त्यांची घरगडी निवडणूक आयुक्त म्हणून नेमणूक करतायत का की निवडणूक आयुक्तांना काही कामच नाहीये? हा सगळा प्रकार जो चाललेला आहे, धाकदपटशांचाही प्रकार करून पाहिला, त्याच्यानंतर पैसे वाटपाचा प्रकार करून पाहिला, तेही उघडकीस आले। यावेळेला सोशल मीडियातून बऱ्याच गोष्टी उघड झालेल्या आहेत, टीव्ही चॅनलमधनं सुद्धा बऱ्याच गोष्टी उघडकीस आलेल्या आहेत। अगदी मी परवा ठाण्याला गेलो होतो आणि मी आणि राज आमच्या उमेदवारांना सुद्धा कोटींची ऑफर करून त्यांची उमेदवारी मागे घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आला। म्हणजे सगळ्या साम दाम दंड भेद एवढी खा कशासाठी सुटले यांना? काय एवढी तुम्हाला ही महापालिकेची निवडणूक, नगर परिषदेच्या निवडणुका म्हणजे मला असं वाटतं की यांच्याकडे महायुतीकडे कर्तृत्व काही नाहीये, म्हणून वाटेल ते करा। तिकडे गणेश नाईकांकडे त्यांचं मतदान केंद्रच फरार झालं, म्हणजे टांगा आहे की नाही जागेवर मला माहित नाही, पण मतदान केंद्र फरार।
त्यांच्या टांगा दुखल्या फिरून फिरून, या मतदान केंद्रात गेले इकडे नाही, त्या मतदान केंद्रात 4 तास लागले त्यांना. म्हणजे हे मंत्र्याची हालत आहे. टांगा दुखल्या, केंद्र फरार. टांगा पलटी नाही झालं, पण त्यांच्या खेट्या घालून टांगा दुखल्यात. आता डोक्यावर हात मारावा की पाय चेपत बसावे, हा गणेश नाईकांचा पुढचा प्रश्न असेल. पण ह्या सगळ्या गोष्टीवरती इलाज करायचा असेल तर मला असं वाटतं निवडणूक आयुक्तांना तत्काळ निलंबित करून त्यांच्यावरती कारवाई केली पाहिजे. कारण हे बसल्या जागी फुकटचा जनतेचा पैसा खातायत आणि सत्ताधाऱ्यांची लाचारी करतायत, असंच मला नाईलाजाने म्हणावं लागतंय. बरं, आता मी सांगितलं की ते काय त्याचं नाव रवींद्रच्या नावापुढे बाईचा फोटो, ते काय मग त्यांचं. It is a great privilege to participate in this festival of democracy. Mumbai is India's financial and commercial capital. We are all proud to be Mumbaikars. We see the future of a developed and prosperous nation from the lens of Mumbai's progress and growth. I appeal to every Mumbaikar to exercise their right to vote as a duty towards their beloved city, for good governance, for fast-paced progress, for ensuring the well-being of every resident of Mumbai, and to guarantee India's success on the global stage, which starts from Mumbai. लोकशाही प्रजातांत्रिक रचना में रचना का एक अनिवार्य भाग चुनाव है और इसलिए वो नागरिकों का कर्तव्य भी है. तो संतुलित विचार करके, जनहित का विचार करके योग्य लगता है उस उम्मीदवार को मत देना, वोट देना, ये अपना कर्तव्य रहता है. उस दिन का वो पहला कर्तव्य होता है, इसलिए मैंने पहले आके नंबर लगाया. आप भी प्रयास कर रहे हैं, चुनाव आयोग भी बार बार करता है और हम भी लोग कहते हैं प्रयास करते रहे, एक न एक दिन सबके मन में जो सज्जन है वो जागेगा और अपना काम करेगा. हमारी रोजमर्रा जिंदगी के लिए आज का दिन है जब रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में आता है. सो मैं यही कहूँगा, सारे मुंबई वालों को कहूँगा आके वोट जरूर करें. खुदा करके हमने कंप्लेन करते हैं कि पानी नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा, रोड ठीक नहीं है, कचरा है, ये है वो है. इट्स नाउ आवर टर्न. हम सबको आना चाहिए और हो सके सारे के सारे आने चाहिए ताकि हम वोटिंग करके सही मतदान, सही बंदा चुन सकें. सो दैट इज़ इट. अगर और साथ में यही कहूँगा कि अगर मुंबईकर का असली हीरो बनना है तो डायलॉग बाजी नहीं, आके सीधे वोटिंग करें. Very comprehensive, very. I think any citizen of any country or state would probably think the same. They should think what I came here for. First of all, to exercise my right, so that we choose the right government or the right BMC, and basically it's the progress of the city that was in my mind. And when I mean progress, I mean in every sphere, whether it's our roads, whether it is everything. It's not just one thing. हम इस वक्त आ गए हैं जोगेश्वरी वेस्ट के एक मतदान केंद्र पर और आप देख सकते हैं मतदान के लिए यहाँ पर जो कतार है वो लोगों की लगनी शुरू हो गई है. सुबह का वक्त है और मतदान शुरू हो चुका है. लोग क्या उम्मीद करते हैं अपने उम्मीदवार से, हम कुछ लोगों से यहाँ पर बात कर लेते हैं. सर, आप बताएं कि क्या नाम है आपका, क्या उम्मीद करते हैं आप मतदान से? मेरा नाम अब्दुल अजीज़ है. स्वच्छ भारत, स्वच्छता के लिए ये वोटिंग कर रहे हैं हम. उम्मीदवार से क्या उम्मीद करते हैं?
उम्मीद वही है कि बस लोगों के लिए काम, सड़क, रोजगार, लोगों के लिए काम करे बस। लोगों के लिए काम करे। उम्मीदवार क्या काम करे? वो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि वो लोग जनता की सेवा करे, जो भी जनता के प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करे, जो भी उनके मसले हैं जैसे कि गंदगी है, रास्ते में कुछ तकलीफ है उनको, तो वो लोग उनके लिए हेल्प करें। आपका नाम क्या सर? शुएब। शुएब जी, आप क्या उम्मीद करते हैं उम्मीदवार से, पार्टी से? बस लोगों के लिए काम करे सर, वही बहुत है। आप क्या देख के वोट डालेंगे? यही देख के जो काम करता है उसको वोट डालेंगे। आपके लिए उम्मीदवार इम्पोर्टेंट है या पार्टी इम्पोर्टेंट है? नहीं, उम्मीदवार इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर देखिए कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोग बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन वोट डालने के लिए यहाँ पर सब आए हुए हैं। और एक बड़ी अच्छी बात यह है, सुबह सुबह वोटिंग का जो परसेंटेज है वो बढ़ता जा रहा है, ग्राफ बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर जो मतदान करने के लिए मतदाता हैं, यानी कि जो वोटर्स हैं, वो अपनी कतार में अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अंदर वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू है। यहाँ पर आपको दिखाएं, ये देखिए यहाँ पर प्रभाग वार्ड नंबर 64 का यहाँ पर अंदर वोटिंग चल रहा है। और अंदर की जो मतदान की प्रक्रिया है वो हम आपको अंदर जाकर नहीं दिखा सकते, लेकिन हम बाहर से आपको इतना ज़रूर दिखा सकते हैं कि ये जो मतदान केंद्र है 64/34, यहाँ पर जोगेश्वरी वेस्ट में मतदान चल रहा है। और बड़ी संख्या में सभी धर्म, सभी जाति के लोग यहाँ पर आ रहे हैं अपना मतदान करने। और वो अपने उम्मीदवार से यही उम्मीद करते हैं कि उनका उम्मीदवार सड़क, बिजली, पानी और रोजगार जैसे जो बेसिक मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं नगर निगम के, उसको सॉल्व करने में उनकी मदद करे।